So, good morning, everyone. Let us understand with the new chapter that is capital for accounting for share capital. So, basically, this chapter deals with the shares and the that is equity shares and the preference shares. Okay, and basically the practical part is very important. That is a authorized share capital, equity issued capital, subscribed capital, paid up capital, then called up capital, reserve capital, okay, forfeited shares. So they'll discuss all these important questions over here. Reissued capital, okay. So let us understand this chapter. Now, before this, we will understand first of all some theory part also to begin this. Now let's start. Now, what is the share capital of a company? Share is a unit in which the capital of the company is divided and each share has a nominal value. Obviously, when the company has to raise the shares in the company, as the company has to raise that capital in the company, then what it will do? It will raise the capital through issuing of the shares. Okay, like suppose if the company total value of the company, total capital of the company that company can raise through the shares is so that capital is say 100 lakhs. Okay, and the total number of shares the company has rupees 1, the total number of shares the company has 1 lakh. So value of each share will be 100. Okay, so total capital of the company can raise to the issuing of shares is 100 lakhs, and if the value of each share is rupees 100, so that means total number of shares, the total number of shares will be how much? 1 lakh. Got the point? So that means every share has a value. Here the share value is rupees 100, and total capital the company can raise through the shares is 100 lakhs. Total number of shares will be 1 lakh. Clear? Another example you can take, for example, let's say the company has total capital the company can raise through the issuing of shares is rupees, let's say 70 lakhs. Okay, let's say 70 lakhs, and the value of each share is rupees 70. Total number of shares the company has is 1 lakh. Understood? So this total amount of the capital which the company can raise through the issuing of shares is called the authorized share capital. जैसे कहते हैं ना, पानी का ग्लास होता है एक, पानी का ग्लास आप कितना भरोगे जितना उसमें जगह है। अगर पानी का ग्लास, जैसे एक पानी का ग्लास देखते हैं, देखो एक पानी का ग्लास है मेरे पास, ठीक है, ये ग्लास है पानी का, इसको मैं अगर यहाँ तक भर लेती हूँ, यहाँ तक पूरा भर लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है विच द कंपनी कैन एक्चुअली रेज द कैपिटल। इससे ज़्यादा कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है विल नॉट अलाउ द कंपनी टू रेज द कैपिटल थ्रू द इशूइंग ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज टू द इशूइंग ऑफ शेयर्स डिसाइडेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो शेयर कैपिटल कंपनीज एक्ट होती है वो बताती है, इससे ज़्यादा वो रेज नहीं कर सकता है। तो इसको कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दैट इज अ मैक्सिमम अमाउंट दैट विच द कंपनी कैन रेज द कैपिटल थ्रू द इशूइंग ऑफ शेयर्स। इसको ही हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली वर्ड समझ में आ गया आपको? दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। ठीक है, तो पहला वाला समझ में आ गया, ग्लास समझ में आ गया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते क्या क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे इन्वेस्ट इन द कंपनी with the intention of earning some of the equity in the business. They have some equity in or the ownership stake in the business, but the preference shareholders do not have any equity stake in the business. When they invest in the business, they will get repayment of the capital at the time of winding up of the company. Okay, but when the equity shareholders invest in the company, they enjoy the maximum rewards as well as they bear the risk of the business and will not be repaid the amount of capital which they invest in the business. Understood? They do not have any kind of voting rights, they do not have any kind of participation rights, like but the most important thing is the preference holders will get that percent of fixed percent of dividend every year.
Okay, but equity shareholders don't get the fixed amount of dividend every year. They enjoy the full fruits of profits and bear the full losses that the company has. But the most important thing is they get the ownership stake in the company. But preference shareholders do not get any ownership stake in the company. They do not have any voting rights like the equity shareholders. And also at the time of winding up of the company, the preference shareholders will be paid the amount of capital which they invested in the company. Okay, they will be given that capital. They repaid that capital. Okay, but equity shareholders will not be repaid the amount of capital which they invested because they bear the ownership stake in the company. Understood? Same thing over here. They get the preference dividend. And instead, the right to receive dividend is only given to the preference shareholders. Right to fixed dividend is not given to the equity shareholders. Fixed dividend नहीं होता equity shareholders का. The first point I have cleared you with the very first page only, authorized share capital. Okay, so authorized share capital is clear to you, everybody. I hope it's clear. And next we come to issued capital. Now, out of the glass which is full of the water, I will not raise the entire capital. I will not raise the entire capital through the issuing of the shares. I am not that fool. Okay, so what I will do, I will save some of the, I will not raise some of the capital, and it will be, I will not raise some of the capital and reserve it for the winding of the company. At the time of winding of the company, if I need some of the capital at the time of winding up of the company, at the time of liquidation of the company, then what will I do? So I will not raise some of the capital and reserve that capital. Okay, so that capital will be known as unissued capital or the reserve capital. Okay, reserve capital or the unissued capital. Whatever capital I will raise for issuing the shares of the company, sorry, for issuing the whatever capital I will raise for issuing the equity share, for issuing the the share cap, for issuing the shares, whatever capital I will raise through the issuing of shares of the company, that whatever share capital I raise through the issuing of shares, this share will be called the issued capital. See, this much, let's say the total capacity, the maximum capital the company can raise is 80 lakhs. Okay. Out of 80 lakhs, 20 lakhs I reserved it. 20 lakhs I reserved it. Let's say 60 lakhs I raised the capital. Okay. So the 60 lakhs will come under issued capital and 20 lakhs will come under unissued capital. Clear? Okay. Understood? और समझ में आएगा, भी सब्सिडाइज कैपिटल भी समझाऊंगी. ठीक है. अब देखिए, शेयर कैपिटल समझ में आ गया होगा क्या होती है. कौन है क्या क्यों मामा. Okay. Okay, share capital we've already discussed. The share capital is used for. Share capital is the total amount of funds the company can raise by issuing the shares. ठीक है. Now, so the capital is used for operations, for growth, for paying the debts of the company, and it represents the owners and the investors' stake in the company. Obviously, whatever the capital is being raised, that that owner's investment in the company, the investor's investment, obviously. And it is obviously by the number of shares only, by issuing the number of shares of the company, only it has been raised. Obviously, the number of shares into the face value of a single share. Suppose number of shares is rupees 1 lakh. Sorry, number of shares is 1 lakh into the face value of one single share, that is 100. So 1 lakh into 100 will be 100 lakhs, right?
share capital. So share capital is rupees 100 lakhs. Same thing is here is told you. See 5 lakhs शेयर से 50 lakh के टोटल कैपिटल इज 5 lakhs थी, तो 10,000 यूनिट्स 10,000 शेयर्स थे 50 के, ईच शेयर इज 50 रुपीज, सो 5 lakhs इज द टोटल शेयर कैपिटल. ठीक है ना. इशूड कैपिटल अनइशूड कैपिटल समझ में आ गया. टोटल कैपिटल विच इज issued by the business for raising the total number of shares issued for raising the capital of the business is issued capital. ठीक है. And capital which is reserved by the company for at the time of winding up of the company, that is the unissued capital or the reserve capital. Now comes subscribed capital. जितनी capital company ने reserve करके रखी है winding up के time के लिए, that is unissued capital. And issued capital जितनी company ने raise करने के लिए issue कर दी है, सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करने के लिए, रेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों के सब्सक्राइब करने के लिए इशू कर दी है, वो होती है इशूड कैपिटल. अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. सपोज आपने ना कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एड्स आता है, न्यूज़पेपर में कई बार क्या होता है कि वो होती है कि मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर दिया है टू द मैगजीन. आपने सब्सक्रिप्शन सुना है? वर्ड सब्सक्रिप्शन सुना है आपने? वर्ड सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? देखो आपने इशू करी और अगर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उसको तो होते सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. ठीक है. जैसे आपने इशू कर दिया हमने इशू कर दिया अपना कुछ, जैसे कुछ इशू करी मैगजीन. ठीक है. लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उसको, तो उसका सब्सक्राइब करके मैगजीन की पेमेंट भी करनी पड़ती है, नहीं पड़ती है? इसको ऐसे समझिए आप, तो भूलेंगे नहीं आप. ऐसे आपने सपोज क्या करा, आपने सपोज मैगजीन न्यूज़पेपर में आपने देखा कोई चीज़ निकली, कोई से वो देखा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मैगजीन निकली है, कोई टेंडर वगैरह है या कोई मैगजीन्स है, उसको आपने इशू करा. ठीक है. इशू कर दिया आपने यहाँ से, वहाँ पर बहुत सारे वो निकलते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है, अब लोग इशू कर देते हैं, अब तुमने इशू कर दिए, अगर तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो सिर्फ सब्सक्राइब कर लेते हो तुम उसको. ठीक है. तो क्या होता है, पेमेंट करनी पड़ती है उसकी, राइट. सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, राइट. वही चीज़ इधर है, यहाँ सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट करनी पड़ती है तुमको. अगर जो लोग पेमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो उसमें क्या आंसर लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड पेड. और जो लोग पेमेंट नहीं करते तो उसके लिए क्या लिखोगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड. जो पूरी पेमेंट कर देते हैं उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब बट पेड अप, जो फुली पेमेंट कर देते हैं. अब सब्सक्राइब नॉट फुली पेड मतलब सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन लोग फुली पेमेंट नहीं करते. समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे समझो. अब देखो इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये वो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल. अब ये पार्ट किसका, इशूड कैपिटल का ही पार्ट है, क्योंकि इशू करने सपोज तुमने 60 लाख कैपिटल इशू कर दी, उसमें से सपोज करो इशू 60 लाख कैपिटल इशू करी तुमने, मतलब तुमने शेयर्स इशू कर दिए. सपोज 50,000 के शेयर्स थे, वो सपोज 60,000 के शेयर्स थे, 1 लाख था, 60 लाख है ना. तो सपोज कर लो कि 60 लाख में से 1 लाख के शेयर्स थे वो इशू करे तुमने. जो 1 लाख के शेयर इशू करे, एक शेयर की वैल्यू 60 रुपीज मान लेते हैं. ठीक है. एक शेयर की वैल्यू 60 रुपीज मान लेते हैं और 1 लाख के शेयर्स. ठीक है. सिंपल लेते हैं. 1 लाख के शेयर्स हमने इशू कर दिए. ठीक है. 1 लाख के शेयर्स इशू कर दिया. जो तो सब्सक्रिप्शन थे, सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने क्या करा कि जब 1 लाख के शेयर सब्सक्राइब करे थे तो मेरे पास जो एप्लीकेशन आती है इसकी, जैसे तुम पेपर में न्यूज़पेपर में ऐड डाला तो उसके बाद तुम्हारी एप्लीकेशन आई, तुम्हारे पास एप्लीकेशन आ गई 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई तुम्हारे पास. ठीक है. तो लोग 1 लाख की तुमने एप्लीकेशन डाली और 1 लाख की तुम्हारे पास 1 लाख की तुमने शेयर्स डाले सब्सक्राइब करने के लिए कि कितने लोग हमारी कंपनी में अंदर इन्वेस्ट करें. ठीक है. और 1 लाख की तुम्हारे पास एप्लीकेशन आ गई, 1 लाख शेयर्स की तुम्हारे पास डिमांड आ गई. ठीक है ना, कि भाई इतने हमें दे दो और हम तुमको पैसे दे देंगे. ठीक है. तो इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन. लोगों सब्सक्राइब करना चाहते हैं तुम्हारी कंपनी के अंदर, समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन. लेमन्स लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको इसका मतलब. इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन. दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल. ये इशूड कैपिटल का एक पार्ट है, क्योंकि वही कैपिटल इशू की गई है 60 लाख वाली, तो 60 लाख का ही वो पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज कंपनी हैज इशूड. जिसे कंपनी ने इशू किया था, क्यों किया था? फॉर कैश के लिए या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश. या तो कैश इसके बदले में तो कैश मिल जाए या फिर कुछ और चीज मिल जाए कैश के अलावा. ठीक है. तो सब्सक्राइब कैपिटल इज क्लासिफाइड अंदर 2 चीजों के अंदर क्लासिफाइड की जाती है. अच्छा देखो एक चीज और है. इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी.
अब वो लोग मेंबर बन जाएंगे कंपनी के, क्योंकि वो लोग जो शेयर खरीदेंगे तो मेंबर बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? समझ में आ रही है बात? एंड इट इज सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि उन्होंने कंपनी के अंदर अप्लाई कर दिया है, कंपनी की अब वो मेंबर्स बन गए हैं, तो सब्सक्रिप्शन लिया उन्होंने। सब जो कंपनी के अंदर अप्लाई कर देता है सब्सक्रिप्शन माना जाता है उसका। और सब्सक्रिप्शन के बाद तुम पे करते हो पूरा अमाउंट या नहीं अमाउंट, वो बाद में देखा जाता है किसने फुल्ली पेड अप किया है, किसने फुल्ली पेड अप नहीं किया है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो चला ही जाता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन के साथ एक अलॉटमेंट अमाउंट तो आता ही आता है, सॉरी एक एप्लीकेशन अमाउंट तो आता ही आता है। तो इसलिए मेंबर तो हो ही जाते हो आप, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालते हो उसके साथ एक अमाउंट आपको पे करना ही पड़ता है, तो एप्लीकेशन मनी तो आपको सबसे पहले रिसीव हो जाता है। इसलिए जब एंट्री बनती है तो क्या बोलते हैं कि बैंक में कितने पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, क्योंकि सबसे पहले ही वो अमाउंट आ जाता है आपके बैंक में, कंपनी के बैंक में पहले ही वो अमाउंट आ जाता है। समझ रहे हो? इसलिए नेक्स्ट देखिए, देखो सिंपल है, देखो कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल अमाउंट एंड इट हैज रिसीव्ड इट, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो गया, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल भी डिस्कस, इट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, तीनों का मतलब सेम है। इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी इज ऑथराइज टू रेज शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब देखिए रिजर्व कैपिटल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व कैपिटल जो हमने 20 लाख बचाए थे स्टार्टिंग में, जो मैंने आपसे कहा था कि 80 लाख की टोटल ग्लास है अपना, 80 लाख की टोटल मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी कैन रेज टू द इशूइंग ऑफ शेयर्स। अब उसमें 20 लाख जो बचा हुआ है, दैट इज रिजर्व कैपिटल, इज अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल दैट कैन बी ओनली रिक्वेस्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द प्रोसेस। वो 20 लाख की शेयर कैपिटल हम कब रेज कर सकते हैं? जब वाइंडिंग अप कंपनी हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही हो। इसी तरह हमें कंपनी को बंद करना पड़ रहा हो, लिक्विडेशन आ गई हो, वाइंडिंग अप हो रही हो। फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह से यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरह उसको यूज किया जाता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमें अपनी डेट सेटलमेंट करना पड़े, हमें कई बार अपने डेट्स उधार चुकाने पड़े, कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, कभी बिजनेस एकदम बंद हो जाता है, ठीक है। उस सिचुएशन के लिए हमें अपने पास एक्स्ट्रा कैपिटल रखने के लिए कुछ होना चाहिए, दैट इज वाई हम रिजर्व कैपिटल को रखते हैं। समझ में आ रहा है? इशूड कैपिटल सेम थिंग है, दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है। ऑथराइज कैपिटल 80 लाख थी, उसमें 60 लाख हमने ले लिया, तो दैट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक को वही तो ऑफर किया है तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करना मतलब लोग एप्लीकेशन तुम्हारी कंपनी में कब सब्सक्राइब कब कर पाएंगे? जब वो इशू क्या होगी कैपिटल, कौन सी कैपिटल इशू होगी? इशूड कैपिटल, तो किसका पार्ट है? ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है। क्लियर हो गया? द रिमेनिंग पार्ट ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड लेटर इज कॉल्ड द अनइशूड कैपिटल और द रिजर्व कैपिटल और द अनकॉल्ड कैपिटल। सबके मीनिंग सेम। कॉल इन एरियर्स, अब कई बार क्या होता है, मैंने तुमको पहले ही बताया कि जो द फर्स्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी इज बीइंग रिसीव्ड along the application in the very beginning of the subscription time, ठीक है, the company. But what happens later on, there are very different installments are there, like bank allotment is there, bank first call account, second call account, so many different installments are there later on, which the shareholder has to pay to the company. But what happens in case the shareholder fails to pay the remaining money, then it is called known as the calls in arrear account. Then we open the calls in arrear account. देखिए पहला मनी तो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहला मनी जो होता है वो कंपनी के पास आ जाता है, एप्लीकेशन मनी तो सबको मिल जाता, सब दे देते हैं, क्योंकि उसके बिना तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहला अमाउंट तो हर कोई दे देता है एप्लीकेशन मनी तो। लेकिन जो दूसरा अमाउंट होता है, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, ये सब जो अकाउंट होते हैं, इसका अमाउंट अगर नहीं दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये खुल जाता है, फिर ये शेयर होल्डर्स का अकाउंट खुल जाता है, फिर हम इसमें लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा जब हम करेंगे क्वेश्चंस। रिजर्व कैपिटल हो गया। कैपिटल रिजर्व जो होता है, जिसमें आपको बताऊंगी, ये कैपिटल डिफरेंट तरीके से आता है। जैसे कि अगर आपने इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। तो ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को सेम मत मानिएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है। तो रिजर्व कैपिटल, जो कैपिटल रिजर्व की गई है, कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल का रिजर्व किया गया है, जो कैपिटल में से रिजर्व होकर आएगी। जैसे प्रॉफिट, आपने फिक्स एसेट्स को बेच दिया,
तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व है। फिर आपने क्या करा, डिबेंचर्स पे रिडीम करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो आपका कैपिटल रिजर्व है। आपने प्रीमियम पे इशू कर दी शेयर्स को, जैसे शेयर्स इसकी वैल्यू 110 रुपये, 100 रुपये थी, 100 रुपये, आपने उसे 120 रुपये पर शेयर पे री इशू किया या इशू किया, तो वो आपका प्रॉफिट है, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी कैपिटल रिजर्व है। अगर अभी ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो इट्स ओके, वी विल डिस्कस इट, विल डू द क्वेश्चंस। Subscribed and fully paid up. अब जब देखिए entire amount of value of a share is being paid up by the shareholder and it is known as subscribed and fully paid up capital. जब when the company has called up the nominal value of the share, nominal value means the issue, nominal value is nominal value of the share means nominal value of the shares बताया था मैंने आपको। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर व्हेन द शेयरहोल्डर हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। नॉमिनल वैल्यू मतलब पूरी वैल्यू जो होती है उसके शेयर की, जो उसकी फुल वैल्यू है उसकी, जैसे कि 10 रुपये का वैल्यू है उसका, 10 रुपये का शेयर वैल्यू, 10 रुपये की पूरी, 10 रुपये पूरे, ठीक है। देन द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। सपोज 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन मनी जो है वो 2 रुपये की है, तो बाकी 8 रुपये उसने नहीं दिए हैं, तो सारे के सारे जो होता है वो दैट 8 रुपीज जो नहीं दिए हैं उसने, उसको हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सपोज उसने एप्लीकेशन में दे दिए 2 रुपये, अलॉटमेंट में दे दिए 4 रुपये, लेकिन बाकी के 4 रुपये और नहीं दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कोई भी एक अमाउंट रह जाता है, अगर 2 रुपये भी रह गया, 1 रुपये भी रह गया, तो भी हम उसको क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर। अब देखिए जैसे कॉल्स नहीं है, वही सेम चीजें देखिए। फॉर एग्जांपल DHB इंटरनेशनल लिमिटेड इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ 1,50,000 शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है ना। ऑल द कॉल्स आर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अब देखिए लास्ट के 2 रुपये रह गए थे 10,000 इक्विटी शेयर्स पे, इन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 10 रुपीज ईच पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि एक शेयर होल्डर था जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स मांगे थे, सब्सक्रिप्शन लिया था उनका, ठीक है, और 2 रुपये पर शेयर उसने नहीं दिए थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपये नहीं दिए थे, मतलब उसने कोई कॉल मनी रह गया होगा उसका। तो इस चक्कर में अब बताओ उसके कितने कॉल्स इन एरिया रह गए थे, तो 1,40,000 जो आप इसमें देखिए 1,50,000 इक्विटी शेयर्स टोटल थे, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने हो गए टोटल, टोटल कितने लोगों ने पैसे दे दिए, इसका मतलब 1,40,000 लोगों ने तो पूरे पैसे दे दिए, तो 1,14 लाख लोगों ने तो पूरे पैसे दे दिए भाई, क्योंकि 1,50,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,500, 15 लैक्स है ना, 15 लैक्स, 15 लाख में से ये 1 लाख 10 लाख हटा दो, हाँ तो कितना हो गया, 14 लैक्स है ना, 14 लैक्स हो गया, है ना। अब 14 लाख हटा, 14 लाख हो गया। अब सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप तो इतने हो गए 14 लैक्स। अब जो 10 लैक्स है उसमें से देखो इसमें क्या करा हुआ है, ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितने शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स और 10 ईच, दैट इज 1 लाख हटा दो, सॉरी 1 लाख हटा दो, तो 1 लाख माइनस कॉल्स इन एरियर कितनी थी, अब देखो ये 10,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 के, ठीक है, और कॉल्स इन एरिया कितने की थी 10,000 इंटू 2, तो यही तो नहीं माइनस कर रहे, माइनस करना पड़ेगा ना हमें इसमें। देखो ये पर्टिकुलर जो है अमाउंट ये सारे शेयर होल्डर्स का है, क्योंकि काफी कंपनी में खाली एक शेयर होल्डर ने अप्लाई नहीं किया हुआ है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसमें जो अमाउंट दे रखा है वो सिंगल शेयर होल्डर का दे रखा है जिसने अकेले 10,000 शेयर्स इशू करे थे, सब्सक्रिप्शन के लिए, सॉरी मांगे थे, सब्सक्राइब करने के लिए मांगे थे, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या चीज होती है कि एक शेयर होल्डर, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने की है वो ये है कि एक शेयर होल्डर कितने भी शेयर्स मांग सकता है। सपोज करो एक शेयर होल्डर जो है वो 10,000 शेयर भी मांग सकता है, एक शेयर होल्डर जो है वो 3,000 शेयर भी मांग सकता है, एक शेयर होल्डर जो है 6,000 शेयर भी मांग सकता है, एक शेयर होल्डर जो है वो 7,000 शेयर भी मांग सकता है, ये सभी समझनी जरूरी है, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर मांगे थे, उनकी वैल्यू क्या थी 10 रुपये पर शेयर, 10,000 इंटू 10, इसका मतलब टोटल कितने शेयर्स के पैसे उसको देने थे, 1 लाख देने थे, और दिए कितने उसने दिए कितने 80,000 दिए, टोटल फुल्ली पेड अप कितने शेयर्स हो गए फिर 80,000 प्लस 14 लाख, टोटल कितना हो गया 14,80,000। ये टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है जो टोटली फुल्ली पेड अप है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, लेकिन जो नॉन पेड अप वो कितनी थी 80,000 है ना,
नॉन पेड 20,000 है, सॉरी नॉन पेड 20,000 है, तो ये 20,000 माइनस करना पड़ेगा हमको उसमें से। हम पूरे में से माइनस नहीं कर सकते, पूरे में से माइनस करना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो देखो, लेकिन पूरे में से इसलिए माइनस नहीं कर सकते, पूरे में से माइनस है तो पूरे में से माइनस कर सकते हो, आपको जैसे भी करना है। देखिए 15 जैसे 1,50,000 है तो 1,500 15 एक मिनट 15 150 15 लाख कर दो, 15 लाख माइनस कर दो, 15 लाख माइनस 20,000 करके देखो एक बार, 15 लाख माइनस 20,000 करके देखो। हाँ ऐसे भी आ रहा है आंसर तो, लेकिन फिर भी ऐसे अगर स्पेशली पूछा गया है, अगर कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप कितने हैं तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप दिखाने हैं तो फिर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। अलग से पूछा हुआ है क्वेश्चन में तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर अलग से पूछा जाए तो टोटल अमाउंट दिखा सकते हो आप, टोटल कितना फुल्ली पेड अप है, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये दिखाना पड़ सकता है। अगर नोट्स टू अकाउंट बनाने तो आंसर तो वैसे भी आ रहा है, 15 लाख में से माइनस कर दो 20,000 तो भी आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे शो करने क्वेश्चंस आते तो नहीं है बट फिर भी कंपनी, अच्छा कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं, जो पहले ही किसी ने एडवांस दे दिया हो कॉल्स का, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। अच्छा अब ये देखिए मैंने कहा था ना बैंक में अंदर एप्लीकेशन का अमाउंट आता है, इसके लॉजिक भी समझाऊंगी मैं आपको। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो दिस इज over now. Now in the next video we'll discuss about the practical questions of share capital, and you will enjoy this chapter. It's very interesting chapter. So thank you everyone, thank you so much.